والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. My dear respectable brothers and my brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We were reading about 5 time daily prayers. Last Friday, we were explaining about the importance of 5 time daily prayers. Our lecture continues. I will try, inshallah, in lectures I will deliver whole book of self-confidence, because 52 topics are available in this book. If anyone he will be activated according to 52 topics, he can make a great saint of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, narrated from Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala, the Jibreel alayhi salam be present with the order of Allah Subhanahu wa Ta'ala and open to my chest and wash to my heart with Ab Zamzam. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala ने बयान फरमाते हैं कि जिब्राईल अमीन अल्लाह ताला के हुक्म से हाजिर हुए और उन्होंने मेरे सीने को खोला और मेरे दिल को आबे ज़मज़म से धोया. He brought a great knowledge of intelligent and good behavior of public dealings and full in my chest. अल्लाह ताला जल्ल शानहू की तरफ से वो एक बहुत नॉलेज इल्म का खजाना लेके आए और उन्होंने वो मेरे सीने में भरा. उसे आप कह सकते हैं हिकमत और दानाई, सीक्रेट नॉलेज फ्रॉम द ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला. मन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा. The Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala says, those people who have granted secret knowledge, they will gain a great knowledge about life, about behavior, about public dealings, meaning hikmat or danai. And then take me at a clean place, there
where you are listening to voice of writer, then compulsory 50 prayers for my ummah. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर जिब्राइल अमीन के साथ मैं अर्श इलाही पर चला गया एक साफ जगह पर, वहाँ पर फरिश्तों के लिखने की आवाज़ मैं सुन रहा था और 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की गई। ये मिराज पाक का वाक़या है, लेकिन चूँकि नमाज के हवाले से है और नमाज के टॉपिक में इतना मेंशन किया गया है। On request of Musa alayhi salam, I requested in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah azza wa jal says, O my beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam, your ummah will perform 5 prayers, but I will give them reward of 50 prayers, because my decision is final. My decision is final. 50 नमाजें वहाँ पे फर्ज हुई, तो जब वापस तशरीफ ला रहे थे रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में नमाजों की कमी का सवाल करें। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर नबी अलैहिस्सलाम 9 मरतबा वापस अल्लाह ताला की बारगाह में गए और नमाजों की कमी का सवाल किया। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने 50 नमाजों की बजाय 5 नमाजें वो मुकर्रर फरमा दी, मीनिंग के 50 नमाजें 50 ही जो फर्ज की गई थी, 45 नमाजें अल्लाह ताला ने लेस कर दी। लेकिन साथ ये भी फरमाया, या मेरे महबूब नमाजें 50 की हैं, लेकिन क्या है कि आपकी उम्मत जो 5 नमाजें पढ़ेगी उसे 50 नमाजों के बराबर सवाब अता किया जाएगा। ये भी यही बात है कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम में, रिवॉर्ड ऑफ गुड डीड्स आर इक्वल टू 10 गुड डीड्स। इफ वी विल परफॉर्म 1 deed good deed, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala will give us a reward equal to 20 deeds। तो अल्लाह ताला जल्ल शान फरमाया कि मेरा जो फैसला है वो आखिरी है। First of all, Hazrat Khadija al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha offered prayer with beloved Prophet peace be upon him sallallahu alayhi wa sallam। जब नमाजें फर्ज हुई तो सबसे पहले हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के साथ नमाज अदा फरमाई। एक दूसरे हदीस के मुतल्लिक़ फरमाया गया, the compulsory prayer is qasr, discount in journey। We will offer 2 farz after 57 miles in Zohar, Asr and Isha prayer। नमाज सफर के दौरान वो कसर फरमा दी गई है, उसमें सिर्फ फर्जों में रायत कर दी गई है। अगर 57 माइल से ज़्यादा सफर करना है तो उसमें सिर्फ 4 फर्जों के हम 2 फर्ज पढ़ेंगे। बाद हमारे मुसलमान भाई सुन्नत मुअक्कदा भी छोड़ देते हैं, वाजिबात भी छोड़ देते हैं, लेकिन वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। बहुत ही कोई कठिन सूरत हाल हो तो उसमें वक़्त के मुफ्ती साहब इस बात का फतवा देंगे, यानी बस के निकल जाने का खतरा है, ट्रेन के निकल जाने का खतरा है, जहाज के निकल जाने का खतरा है, दुश्मन का खतरा है। ये चीज़ें इन सूरतों में अगर सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ी जाती और हदीस मुबारका में बहुत सारी इसकी वजाहत की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में नमाज के मतलब बहुत वजाहत फरमाई है, क्योंकि सिर्फ 760 कुरानी आयात, 760 क्या है, सिर्फ कुरानी आयात हैं। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नमाज की। अभी चूँकि हम नमाज की फर्जियत के मतलब पढ़ रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने वो अरबी मतन की इबारात भी कुछ पेश कर दी जाए
ताकि इसकी मज़ीद अहमियत का हमें पता चल जाए। वज़ू के मतलब हम पहले बयान कर चुके हैं और अभी हमारा टॉपिक जो है पांचों वक्त की नमाज के मुतल्लिक़ है कि अल्लाह ताला जल्ल शान ने उसकी कितनी अहमियत रखी है। इसमें और काफ़ी सारे मसाइल भी हैं कि जिस तरह के औरतें एक ख़ास वक्त में वुमेन can't offer prayer in a special days. So prayer is not for give you even you have only one seat in dress. Ra'aytu Jabir bin yusalli fi sawbi wahidin qad ilqai tarafayni ala atiqai. And narrated by Hazrat Jabir radiallahu ta'ala anhu, when you offer prayer in one sheet, you must cover your shoulder. ये बुखारी शरीफ के हदीस नंबर 348, 50, 50 और 51 में ये मसला है। मीनिंग के अगर ये उस वक्त में था जब सहाबा किराम वेरी पुअर कंडीशन, दे हैड नॉट क्लॉथ्स, और जिसके बाद एक ही शीट थी, एक ही कपड़ा था, तो उसको इजाजत थी कि वही की कपड़े में नमाज पढ़ ले। लेकिन उसके साथ क्या है कि फरमाया कि एक ही कपड़े में नमाज पढ़नी है तो दोनों शोल्डर जो है कंधे हैं उनको भी ढांक दिया जाए। Shoulder should be covered. If you would have two pieces of clothes, you must offer prayer in complete clothes. अगर बंदे के पास पूरे कपड़े हैं, उसे कोई मजबूरी नहीं है, तो वो फिर पूरे कपड़ों के साथ ही नमाज पढ़ेगा। और फरमाया कि it is better for prayer, use washroom, make completely wudu, you do masa at the moza, leather socks, and wear shami overcoat, shami jubba. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मुकम्मल वुज़ू करो नमाज के लिए, मुकम्मल वुज़ू करो, पहले वाशरूम में इस्तेमाल करो, फिर मुकम्मल वुज़ू करो और फिर मसा करो। चौथाई सर के ऊपर जो वुज़ू में मसा किया जाता है, जब 10 minutes past 1 इंशाल्लाह we will offer 10 minutes past 1 we try, we will finish lectures and then we will offer sunnah, and 1:15 is time, but mostly our Muslim brothers, they are not coming on time. Should be, we have requested and we have announced about time. This is Sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him. When you offer prayer, first use washroom, make complete wudu, and you do masa at your head, fourth part of your head, and you do masa at the moza, khufai summa salla. इसमें क्या है कि वज़ू सही तरीके से किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि वाशरूम जाए बंदा, सही तरीके से पाकी इख्तियार करे, फिर वज़ू करे और फिर चौथाई सर का मसा करे वज़ू के दौरान, जो कि फ़र्ज है। और अगर मोज़े लेदर सॉक्स पहने हैं तो उनके ऊपर मसा किया जाता है। इसमें भी एक ये मसा है, मसला है कि ये लेदर सॉक्स सुबह आप वज़ू करके पहन लें और 24 घंटे तक आप इसके ऊपर मसा कर सकते हैं। वज़ू करके आपने लेदर सॉक्स पहननी है। If you need wuzu, you will make wuzu, but you will not wash your fists. Only you will rub your wet hand at the leather socks. But
masa khufai is not acceptable on socks, cloth socks, woolen socks. बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ये मसला पूछते हैं, पाँव धोने की बजाय वो हाथ गीले करके पाँव के ऊपर फेर लेते हैं, यानी सॉक्स के ऊपर, ये नॉट एक्सेप्टेबल. If you have a leather socks, then you can do a massage. इसका मसला ये है. Your clothes should be without maps and picture, so that your intention will not be divided. I was worried about maps, it will disturb me. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो कपड़ा है उसमें नक्शो निगार से पाक होना चाहिए, तस्वीरें भी नहीं होनी चाहिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का फिक्र है कि अगर पिक्चर्स और मैप्स होंगे क्लोथ के ऊपर, तुम्हारी तवज्जो जो है वो नमाज में कायम नहीं होगी, नमाज में नहीं ठहरेगी. Offer prayer with leather socks. This is the style of the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and you can get help for wudu. Then make wudu and complete masa at leather socks. Already I have explained you. If you have leather socks, ये आपके लिए नमाज पढ़ने में जरा आसानी है, फिर आप इसके ऊपर वजू की जरूरत पड़े तो मसा कर सकते हैं. And you offer completely your ruku and sajda. Otherwise, you will die against the style of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال له حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لو مت على غير سنة محمد sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu said, you will die against the style of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is declaration from the Bukhari Sharif number 384. Meaning कि इसमें हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं कि अगर कोई बंदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कोई बंदा रुकू, नमाज में रुकू सही नहीं करता, सजदा सही नहीं करता, और अगर उसी सूरत में वो मर गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ मरेगा. इसलिए नमाज की चोरी, डोंट थेफ्ट टू प्रेयर. नमाज की चोरी क्या है? रुकू सही तरीके से ना करना, सजदा सही तरीके से ना करना. Between prostrate, keep up your elbows from floor and keep open your arms. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान जब तुम सजदा अदा करो तो सजदे के दौरान अपनी कोहनियां जो हैं वो फर्श से, जमीन से उठा के रखो और अपने बाजुओं को ऐसे जोड़ के सजदा ना करो, बल्कि बाजू खुले होने चाहिए. औरत के लिए हुक्म है कि जब वो सजदा करे तो जमीन के साथ ऐसे चिपक के क्लोज होके वो सजदा करे. मर्द के लिए ये हुक्म है कि उसके पीछे पंजे जो हैं वो मुड़े होने चाहिए और उसकी नाक बकायदा जमीन पे लगी होनी चाहिए, पेशानी जमीन पे लगी होनी चाहिए. और इसके मतलब फरमाया गया कि 7 हड्डियों के ऊपर बंदा सजदा करे. 2 तो पंजे वाली हो गई और 2 आपकी नी की हो गई, 2 हाथ वाली हो गई और ये फोरहेड की हो गई. ये कंप्लीट हम इस तरह अपना सजदा नमाज सही तरीके से अदा कर सकते हैं. और बाजुओं को उसके दौरान खुला रखना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. Who perform prayer and he chooses direction of Qibla and eat or slaughters and he is a Muslim, then Allah Azza wa Jal and the Holy Prophet peace be upon him will be his responsible of forgiveness. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान जो हमारे किबले को मुकर्रर करता है, किबला बैतुल्लाह को किबला मुकर्रर करता है और हमारे ज़बीहा को खाता है, तो वो मुसलमान
कि उसके मतलब अल्लाह ताला जल्ला शानहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू उन्हें बख्श देगा। Then no dirty blood and property of them will be prohibited for us। यानी जो बंदा किबले को मुकर्रर करता है नमाज के लिए, हमारे ज़बीहे को खाता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि उसका माल, उसका खून जो है वो हिफाजत में आ गया, अंडर प्रोटेक्शन। किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान का माल, खून, इज्जत जो है वो खराब करने की इजाजत नहीं है। One declaration of the Holy Prophet, peace be upon him, this is prohibited for all Muslim people. They can't waste blood of any Muslim. He can't deduct property of any other, and he can't damage the respect of a Muslim. एक मुसलमान की इज्जत, माल, खून दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। कोई मुसलमान किसी मुसलमान की ना खून बहा सकता है, ना ही उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है, और ना ही उसकी इज्जत खराब कर सकता है। ये हराम है। रोज़े महशर को इसका जवाब देना पड़ेगा। You do not throw your spit to way of Qibla। यानी मज़हब इस्लाम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि किबले की तरफ मुंह करके ना थूको। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, कभी हमने इसके मतलब गौर किया, कभी केयर की है, वी आर केयरिंग अबाउट दिस मैटर और नो। ये मज़हब इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है। Followers of the Holy Prophet, peace be upon him, requested which activities are valuable in the court of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. He sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, replied, prayer on time, then cooperate with parents, then hard struggle in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala for him. सहाबा इकराम ने अर्ज की, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जल्ला शानहू को कौन से अमाल पसंद हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज को उसके वक़्त पर अदा करना। और दूसरा क्या है? The Holy Prophet, peace be upon him, says, replied, prayer on time, नमाज को उसके वक़्त पे अदा करना, then cooperate with parents, अपने वालिदैन के साथ तामल करना, उनकी फरमाबरदारी करना, उनकी हर हक बात को मानना, then hard struggle in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala for him, अल्लाह ताला जल्ला शानहू को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए मेहनत करना। अल्लाह ताला की राह में वो मेहनत इल्म हासिल करने के लिए भी हो सकती है, इबादत के लिए भी हो सकती है, अपने मुसलमान भाइयों का भला सोचने के लिए भी हो सकती है, वालिदैन की खिदमत के लिए भी हो सकती है, और इस्लाम के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रगल करने में भी हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि by 5 time prayer Allah delete 2 meanwhile sins। Prayer deletes sins। Qala kazalika तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू पांचों वक़्त की नमाज के दरमियान जो गुनाह है वो उसको माफ फरमा देते हैं। And prayer is plenty of sin। Narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, the Holy Prophet, peace be upon him, says 5 time prayer and Friday to Friday and Ramadan to Ramadan are covering to meanwhile sins when care from major sins। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं। फरमाया कि पांचों वक़्त की नमाज के दरमियानी जो गुनाह है वो नमाजों की वजह से अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं।
जुम्मा से जुम्मा के दरमियान और रमज़ान से रमज़ान के दरमियान जो गुनाह अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमा देता है, बट शुड बी केयर फ्रॉम मेजर सिंस, जो गुनाह कबीरा है उससे बचा है। और अभी हमारा स्टाइल क्या है मुसलमानों का, हम जुम्मा भी इसीलिए पढ़ने आते हैं कहीं काफर ही ना हो जाए। जिस तरह क्रिश्चियन, Jews, they are going to church for prayer on Saturday and Sunday. All Muslim brothers, they are coming only for Friday prayer. क्या बनेगा हमारा? हमें कोई पूछे, हम कहेंगे कौन है जी? आप? मेरा नाम जी, मेरा नाम है जी गुलाम मोहम्मद समदानी। क्या मजहब, क्या जी इस्लाम? कितना फॉलो करते हो इस्लाम को? कितना नॉलेज है? कितना हराम से बचते हो? कितना हलाल इख्तियार करते हो? फिर हमारा वो फ्यूज ही उड़ जाता है, फिर कोई जवाब नहीं है। और अगर कोई बंदा बहस मुबासा करे तो हम उसको उसके घर तक छोड़ के आते हैं। We give him a lift up to his door. उसके घर तक उसको छोड़ के आते हैं। बातों में हम नहीं किसी को बुरा आने देते, जब अपने अमल की तरफ देखे अमल खाता गो। My dear respectable, these are all declaration of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. This is a respect for people from the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. But we are not caring about this respect, about this benefit, about this reward, about these are all good deeds. Clearly narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, narrated from Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, the Holy Prophet peace be upon him says, 5-time prayer and Friday to Friday and Ramadan to Ramadan are covering to meanwhile sin when care from major sin. मेजर सेंस में तो हमें पता ही है मेजर सेंस क्या है, लेकिन जब हम केयर नहीं करेंगे तो फिर वो चीज हम हासिल नहीं कर पाएंगे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी है, जो रहमत रखी है, जो सवाब रखा है, जो अपना फजल रखा है। याद रखें उसकी रहमत और उसके फजल से, सवाब से ये तकलीफें दूर होती हैं। तकलीफों तकालीफ के सामने एक वॉल बन जाती है। We can get protection by good deeds, by 5-time prayer, by recitation, by worship. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala create a wall at the front of difficulties. लेकिन हमें चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को अवेल करें। इंशाल्लाह ये कंटिन्यूज रहेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है। अल्लाह ताला जल्ला शान ने 760 मरतबा कुरान अज़ीम शान में नमाज के मुतल्लिक़ फरमाया। नमाज विद कंसंट्रेशन, not roughly. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh, no good. The religion Islam is not giving permission. We request to the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, our God, our Lord, we accept it. We are criminals. Please forgive us. And please give us a special spiritual power and give us a protection from the devil, from minor and major sins. Ameen wa ma'alina illa Allah mubin